Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And this is the part 2 for the chapter tissues. For plant tissues topic, you have to see the previous video. It is in my channel. Now, animal. Let's start with the animal tissues. Animal tissues is related to our human body. Then epithelial tissues. It's the first part is epithelial tissues. Epithelial tissues is the covering or the protective tissue in the animal body. Epithelium covers most organs and cavities within the body. It also forms a barrier to keep different body systems separate. The skin, the lining of the mouth, the lining, etc. This the linings are made up of epithelial tissue. Epithelial tissues के जो cell हैं, they are tightly packed and they form the continuous sheets. There are also different types of epithelial tissue which we will be going to study just at the next page. These are four different types of the epithelial tissue. Then there is importance of epithelial tissue, and different epithelial are also over there, which is the different types of epithelial. For example, the lining of the blood vessels and lung alveoli, where transportation of the substance occurs through the selective permeable membrane. Now, first of all, the squamous epithelium. स्क्वामस एपिथेलियम जो है, ये जैसे कि अभी हमने पढ़ा, लाइनिंग जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, जो लंग्स की जो एल्विले होते हैं उसकी जो लाइनिंग होती है, जो बहुत पतली लाइनिंग होती है, बिल्कुल फ्लैट काइंड ऑफ होती है, एपिथेलियम के टाइप की, वो होती है स्क्वामस एपिथेलियम. और एज यू कैन सी, स्क्वामस epithelium is very thin, and then cuboidal, columnar, and the stratified. Simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat and form a delicate lining. The esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium. Squamous epithelium. The skin, which protects the body, is also made up of the squamous epithelium. Skin epithelial cells are arranged in many layers. जो स्किन की जो लेयर्स होती हैं, it is arranged in it is having many of the layers to prevent wear and tear, since they are arranged in a pattern of the layers which is known as stratified squamous epithelium. तो पहले स्क्वामस जो थिन है, अब उसी का ही अगर हम उसको स्ट्रैटिफाइड कर दें, मतलब उसको हम एक के ऊपर एक पिलर्स टाइप से बनाने लग जाए, तो वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हो जाता है. अब पिलर वर्ड टर्म हुआ, तो पिलर जैसे, एक तो पिलर की तरह हमने बनाया, और एक जो पिलर जैसे जो सेल्स होते हैं उसे हम कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स बोलते हैं, जो एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, इन सब में हेल्प करते हैं. इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होते हैं, जो आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स में हेल्प करते हैं. इनका जो सीलिया होता है, ये इनको मूव करने में हेल्प करता है. दी सीलिया कैन मूव. इनका जो सीलिया होता है ये मूव भी कर सकता है, और इनका जो मूवमेंट होता है ये म्यूकस को फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है, और इसी से हम पूरी बॉडी हमारी क्लीन रहती है. इसीलिए इनको हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी बोल सकते हैं. क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्यूब शेप्ड के हैं. ये यूजुअली डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, और एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये एडिशनल स्पेशलाइज्ड भी इनके अंदर ग्लैंड सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियल सरफेस पे सिक्रीट करते हैं सब्सटेंस को. समटाइम्स, अब कभी कभार क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो ना अंदर की तरफ फोल्ड सा हो जाता है, तो एक ग्लैंड सा बन जाता है, और उस ग्लैंड का जो एपिथेलियल होता है दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. हियर यू कैन सी द 4 different types of epithelial. Now the connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू भी ऑल नो. कनेक्टिव टर्म क्यों यूज़ होते हैं, जब कोई दो चीज़ को कोई जॉइन करता है, जो कनेक्ट करता है, एंड द बीच में जो एक चीज़ है दैट इज़ द कनेक्टिव
थिंग। अब इधर हम टिश्यू की बात करते हैं तो दो ऑर्गन्स को जॉइन करने वाला जो एक चीज़ है दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं लाइक ब्लड, बोन एंड लिगामेंट, मैट्रिक्स, बहुत सारे। तो लेट्स स्टडी अबाउट देम वन बाय वन। Now blood has a fluid matrix called plasma in which red blood cells, RBCs, WBCs, and the platelets are there. Plasma contains proteins, salts, and hormones. Blood flows and transport gases, digested food, hormones, and waste materials to different parts of the body. Bone is an other example of the connective tissue, as we just discussed. अब बोन को तो हम सब जानते हैं, जो अगर बोन को जॉइन कर के एक बोन को जॉइन करके ही तो एक फ्रेमवर्क बनता है जो हमारी पूरी बॉडी है। अब इसके अंदर मसल्स भी हैं, अलग अलग टिश्यूज़, अलग अलग सेल्स है, तो वो अलग है। अब बोन, अब ये तो नहीं है कि बोन अंदर से पूरी हॉलो है, नहीं, इसके अंदर भी एक मैट्रिक्स है। जैसे ब्लड के अंदर एक मैट्रिक्स था प्लाज्मा, वैसे ही बोन के अंदर भी एक मैट्रिक्स है विच इज गेस नथिंग। बोन के अंदर कोई मैट्रिक्स नहीं होता है, बल्कि मैट्रिक्स का उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, लेकिन हाँ मैट्रिक्स होता है। अब ये ऊपर हमने पढ़ा कि ऊपर मैट्रिक्स का नेम था, इधर मैट्रिक्स का नेम नहीं, लेकिन हाँ ये मैट्रिक्स है। जैसे प्लाज्मा जो है ये एक लिक्विड मैट्रिक्स है, बोन के अंदर एक हार्ड मैट्रिक्स है, तो लगता है मैट्रिक्स भी कोई चीज़ है। इसके दो टाइप्स है, तो हमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो बताई ही नहीं। मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे थी कि जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, जो दो पार्ट्स को जॉइन करती है, उसी के अंदर कभी कभार एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, चाहे वो डेंस है, चाहे वो रिजिड है, या बिल्कुल ही फ्लूइड है, दैट इज़ नोन एज अ मैट्रिक्स। अब उसका अलग अलग नेम भी दे रखा है, जैसे कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, अब बोन के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि बोन बिल्कुल अंदर से हॉलो है, नहीं, उसके अंदर भी मैट्रिक्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। ये बस एक हार्ड मैट्रिक्स है जो बोन को हार्ड बनाती है। जैसे कि अगर, वैसे तो ऐसा कभी नहीं देखा नहीं होगा किसी ने, लेकिन अगर कभी भी टाइम मिले और किसी का दांत टूट जाए तो देखना, जो टीथ होता है वो ऊपर से तो हार्ड होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है। वो एक्चुअली सॉफ्ट नहीं होता है, वो तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता है, वो अंदर दिखने से सॉफ्ट होता है, लेकिन वैसे पूरी बॉडी के लिए अगर मैट्रिक्स के कंपैरिजन देखें तो वो सबसे हार्ड मैट्रिक्स होता है। पूरा जो पूरा टीथ को फिल करके रखता है, जैसे कि अगर किसी का टीथ अंदर से हॉलो हो जाता है तो उसको भी जो फिलिंग करवाता है टीथ की, वो भी ऐसे ही करवाता है जो मैट्रिक्स का काम करती है। अब जो अगर टीथ्स अगर हॉलो होंगे तो वो तो टूट जाएंगे, वो तो निकल जाएंगे, मतलब टूटेंगे नहीं, मतलब निकल जाएंगे, या दो पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है। अच्छा चलो, अब बोन्स हैं। अब बोन्स को जॉइन कर करके एक फ्रेमवर्क बनता है। लेकिन ये तो बहुत सारी बोन्स होगी, अगर सिर्फ दो बोन्स को जॉइन करना है तो फेविकॉल या फेविक्विक से तो करेंगे नहीं, या गम से तो करेंगे नहीं, तो इसके लिए एक अलग चीज़ आती है, अलग मैट्रिक्स आता है विच इज़ लिगामेंट। ये बहुत इलास्टिक होता है, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, और लिगामेंट जो है इसके अंदर अगेन एक मैट्रिक्स होता है, ये भी एक मैट्रिक्स की तरह ही होता है जो बोन्स को कनेक्ट करता है। अब बोन्स और मसल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कैसे? बोन टू बोन तो हो गया लिगामेंट, बोन टू मसल्स। अब ये बोन टू मसल्स का क्या काम है, क्योंकि अगर हमारा मन कर रहा है हमें हाथ उठा के कुछ लिखना है या कुछ उठाना है, तो हड्डी तो ऐसे तो वो जॉइन हो, एक तरफ से तो स्टिफ बन गई, लेकिन हाथ में मूवमेंट करने के लिए, बॉडी में मूवमेंट करने के लिए मसल्स हैं। अब मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने के लिए टेंडन यूज़ होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। अब टेंडन्स जो है ये भी एक फाइब्रस टिश्यू है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है और फ्लेक्सिबिलिटी तो लिमिटेड है। अब कार्टिलेज एक और टाइप है विच इसमें बहुत स्पेस्ड सेल्स होते हैं, और ये इसके अंदर भी एक सॉलिड मैट्रिक्स होता है जो प्रोटीन्स और शुगर को कंटेन रखता है। और कार्टिलेज जो है ये बोन सर्फेसेस को स्मूथ कर देता है, सर्फेसेस को स्मूथ कर देता है, वरना वैसे तो ये बहुत ही हार्ड होगी, वरना बोन को स्मूथ करने के लिए कार्टिलेज यूज़ होता है। अब
एक्चुअली जैसे कि अगर आपने अभी हमने पढ़ा कि पूरी बॉडी में बोन्स ही बोन्स होती हैं, लेकिन हमारी ईयर के कुछ पार्ट्स में, नोज़ के कुछ पार्ट्स में, बोन को जहाँ से वो जॉइन हो रहा था उसके कुछ पार्ट्स में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, इट लाइक पेपर वो स्मूथ। तो वो जो स्मूथनेस आती है वो कार्टिलेज के थ्रू आती है, और जो कार्टिलेज जो होता है वो हमारे ट्रैकिया, नोज़, ईयर और लाइनेक्स में होता है। अब जो कार्टिलेज, ईयर का जो कार्टिलेज होता है हम उसको बेंड कर सकते हैं, और उसी कार्टिलेज के थ्रू हमारे ईयरिंग्स, टॉप्स, ये सब डलते हैं। कभी भी आप कोशिश करना सिर्फ ईयर के आउटर एक पतली सी लेयर में ऊपर से नीचे आप ईयरिंग्स लगा सकते हो, लेकिन बिल्कुल सेंटर में नहीं लगा सकते। बिल्कुल सेंटर में भी तो हड्डी होती है, कान की हड्डी भी होती है, नाक की हड्डी भी होती है, लेकिन वो जैसे पूरी बॉडी में तो हड्डियाँ हड्डियाँ होती हैं, लेकिन इधर अगर ऊपर ऊपर देखें, आउटर लेयर में देखें तो यहाँ पे नोज़ पे और ईयर पे कवरिंग नहीं होती है, मतलब बोन्स ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि अगर नोज़ में या ईयर्स में बोन ही बोन होगी तो ईयर तो चलो ठीक है, लेकिन अगर नोज़ में बोन ही बोन होगी तो हम सांस कहाँ से लेंगे? वही तो, इसलिए कार्टिलेज भी बनाया भगवान ने। अब एरियोरल कनेक्टिव टिश्यूज़, अब जैसे कि बोन मैरो है, नर्व्स हैं, जो ऑर्गन्स के अंदर की स्पेस को कवर कर देता है, दैट इज़ एरियोरल टिश्यू। इसमें ये स्किन और मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये तो एयर को स्टोर या चलो स्टोर करने के लिए या फिल करने के लिए होता है, तो इसे फैट को स्टोर करने के लिए क्या होता होगा? हेयर एक और टर्म है एडिपोज टिश्यू, जो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हमें मिलता है, और इसके अंदर इसके अंदर जो मेन थिंग होती है वो फैट ग्लोब्यूल होती है। जैसे कि सेल के अंदर जो मेन थिंग होती है वो तो न्यूक्लियस ही होती है, बाकी सब हो या ना हो, लेकिन अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल काम कैसे करेगा? स्टोरेज ऑफ द फैट्स जो है ये एक इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं। अब मस्कुलर टिश्यूज जो हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। नाम से हमें पता है स्ट्रैटेड मतलब जो अलग अलग कलर्स की स्ट्रैट हो, जो अलग अलग स्ट्रेटेड हो। अब इसमें हम लाइट और डार्क बैंड्स यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर लाइट और डार्क बैंड्स होती हैं। लेकिन उससे पहले हमने, अब वही टाइप्स तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन जो है मसल्स, एक्चुअली डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है वो सब मसल्स के थ्रू होती है। और मसल्स के अंदर अगेन एक प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, मूवमेंट्स में हेल्प करता है। अब हम उसकी टाइप्स पे आ सकते हैं। अब अभी हमने पढ़ा कि मसल जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, तो मतलब कि जो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स है ये भी मूवमेंट में ही हेल्प करती होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्ट्रैटेड मसल जो होते हैं इनमें लाइट और डार्क बैंड्स होती हैं, और ये एक्चुअली बहुत लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे स्केलेट, ये जितना भी हमारा वो होता है के अंदर मूवमेंट के लिए जो भी जॉइंट, जो भी पॉइंट्स होते हैं ये वहाँ पे होता है। ये एक्चुअली बोन्स और मूवमेंट ऑफ द बॉडी के बीच का लिंक होता है। अब हम स्मूथ मसल सेल्स पे आए तो हम ये इनवॉलेंट्री होता है, स्मूथ मसल सेल्स तो मूव करते ही रहते हैं, होता ही रहता है। अब इनको हम अनस्ट्रेटेड भी बोल सकते हैं, और ये इनवॉलेंट्री भी होते हैं स्मूथ मसल सेल्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इनवॉलेंट्री सेल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में हेल्प करते हैं। ये ब्लड वेसल्स में भी हम इन्हें देख सकते हैं, ये ब्लड वेसल्स में भी होते हैं। अब इनकी जो, अब ये जो सेंटर से होते हैं, ये स्पिंडल शेप के होते हैं, जो लॉन्ग सेल्स होते हैं, लेकिन ये एंड से पॉइंटेड होते हैं। अब हार्ट, ये जो कार्डियक मसल्स है ये हम सबको पता है, ये हार्ट में होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिएक्शन की हेल्प करते हैं। अगर यही नहीं होंगे तो हमारी तो लाइफ ही चली जाएगी हमारी, क्योंकि पंप, जो ब्लड को जो पंप करता है वो तो हार्ट ही तो होता है। हार्ट इज़ द मेन थिंग इन आवर बॉडी। अब ये जो मसल्स हैं ये अगेन दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स, जो कार्डियक मसल्स हैं, और ये जो है ये
इनवॉलेंट्री, ये जो है ये हार्ट मसल सेल्स जो होती हैं ये सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। नर्व, अब जो नर्वस टिश्यू है ये अब हमारा फोर्थ टाइप आती है नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू। ये जो होती है ये वही, अगर ब्रेन टू, अब जैसे कि आप अपना हाथ गर्म पानी में डालते हो, बिल्कुल गर्म पानी में या बिल्कुल ठंडा पानी में, तो बिल्कुल इन द सेकेंड्स, इन द मतलब चुटकियों में आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो। तो आपको ये जो ऑर्डर देता है, ये तो हमने देख लिया कि ब्रेन ऑर्डर देता है, लेकिन ब्रेन टू बोन या ब्रेन टू मसल्स कौन डिलीवर करता है मैसेज कि ब्रेन ने बोला है कि अपना हाथ पीछे करना है? नर्व्स को। तो अब ये पहले हमने हाथ पानी में डाला, फिर नर्व्स को पता चला कि ये पानी गर्म है, फिर वो हार्ट तक लेके गया कि क्या हम अपना पैर या हाथ इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर ब्रेन ने बोला कि नहीं डालना, ये तुम्हारी बॉडी के लिए कुछ ज़्यादा ही गर्म है। फिर वो वापस नर्व्स जो होती है वो मसल्स और बोन्स को बोलती है कि हार्ट ने बोला है कि इसको पीछे ले लो। तो ये जो जितना बड़ा प्रोसेस है, ये तो हम तो जब हाथ डालते तो हम अचानक से पीछे ले लेते हैं, और अभी जब मैंने बोला तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस था। तो ये बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का काम होता है। और ये जो स्टिमुलाई, ऑल द सेल्स जो होते हैं, सारे सेल्स के पास एक स्टिमुलाई, एक इनके पास एक एबिलिटी होती है स्टिमुलाई करने की। हाउएवर जो होते सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर द स्टिमुलेशन then transmission of the stimulus very rapidly from one place to another within the body. The brain, the spinal cord, and the nerves are all composed of the nervous tissue. The cells of this tissue are called the nervous cells or the neurons. The neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm, from which a long thin hair-like part arises. Usually, each neuron has a single long part called axon. In the figure you can see it's very short. Like अगर हम इसको स्ट्रेट करके देखें तो ये एक ट्री की तरह दिखता है। हाउ? ट्री की भी नीचे रूट्स होती हैं, ऊपर ब्रांचेस होती हैं, बीच में एक सेल बॉडी होती है एंड पूरी उसकी स्टेम होती है। बस ये वही है, इसकी भी एक सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स है, एक्सन और नर्व एंडिंग है। ये एक neuron is a unit of a nervous tissue. It's a small part of the nervous tissue. नर्व जो होती है ये पूरी 1 मीटर की होती है, और ये छोटे छोटे बहुत पूरी बॉडी में स्प्रेड हुए होते हैं। द सिग्नल जो नर्वस टिश्यू से स्प्रेड पूरा जाता है, पास करता है, वापस आता है, दैट इज़ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो हमारे मसल्स को, जो ब्रेन का जो मैसेज होता है वो सब हेल्प करती है। और ये द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, इट इज़ it is it is a fundamental to all the animals. This combination enables animals to move rapidly and response to stimuli. Here ends our full chapter, and these are the type of the notes, and each chapter there are notes which is what you have learned. So read this chapter.